अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर मौजूद हैं और सिमल शेख भी सामने नजर आ रही हैं, बड़ी फॉर्म में आज क्योंकि ये जल्दी से असल में अब मैं बता दूं आपको कि ये इस सर्दी के मौसम का मज़ा लेने जा रही हैं और इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट होने वाली है। जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? जी हाँ, मैं पाकिस्तान टूर पे जा रही हूँ। हाँ, तो ये जो टूर पे जा रही हैं ऐसी जगह पे जहाँ बर्फ़बारी हो रही है। जी हाँ, तो स्नोफॉल देखने जा रही हूँ। हाँ, तो मैं मुझे बहुत इनकी शौक है। हाँ बिल्कुल, तो काफ़ी दिनों से इन्होंने फॉर्म बनाया था, तो आज ये बस हमारे से इजाज़त लेंगी और ये जाएंगी। आज के दिन भी नहीं छोड़ा डॉक्टर साहब ने, आज के दिन ही बुला लिए, नई वीडियो मैंने कहा भाई पता नहीं कि भाई कब आएंगी वापस, तो इस चक्कर में तो दोस्तों इनके ये फेवरेट जो है एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, उसका हवाले से जो है मैं एक वीडियो के बारे में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेन के हवाले से तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर तो और मज़ा आने वाला है वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है हाउ कानपुर ब्लड वर्ल्ड फास्टेड मेट्रो इन जस्ट 2 ईयर। अच्छा, 2 ईयर में बनी है। UP's second metro rail, Kanpur Metro, is now open for public. Wow. Kanpur's name is now listed in the names of India's tier 2 cities that have a metro rail. But do you know that the Kanpur Metro is world's fastest constructed metro? 18,576 hours, 774 days, or just 25 months. That is how long Kanpur took to build its metro rail. Fastest not in India but in the world, beating Delhi, beating Mumbai, and beating big cities of Europe, America, and heavyweight China. Metro rail is not a wall or a pipeline that your municipality lays along the road. Imagine such a railway project with massive structures, massive stations, and fast trains constructed in just 2 years. Well, yes, it's possible. There are 4 main techniques that were adopted by Kanpur Metro to complete the project so rapidly. In the end, we will give a bonus point as well. Come, Under construction let's see how Kanpur Metro was constructed so rapidly. The Kanpur Metro has uniform standards for all its superstructures. This means almost every pier, almost every girder, almost every station is identical to each other. They have the same structural design, so looks more or less are the same. This helped to speed up the construction because employees work on a given guideline without wasting time on unnecessary changes in designs. They just repeat constructing whatever they had made so far. Various structures of Kanpur Metro were smartly prepared in manufacturing units and then assembled on site. Important elements like the pier caps, the U-shaped girders, and the T-shaped beams of stations and steel girders of special spans were all constructed in factories far away from actual construction site. Once constructed, they were transported to the site and assembled. When columns were being erected, pier caps and girders were already under construction in casting yards and factories. Their assembly took just a couple of nights. Stations of Kanpur Metro for the first time in the country used pre-cast T-shaped beams for construction. Usually, different slabs are constructed on-site for concourse and platforms. But in this case, the concourse and platforms were constructed part by part in factories or casting yards and then transported to the site by large trailers. Once the columns were ready to take up the load, the beams were erected and assembled together to form the entire slab in no time. Kanpur Metro adopted excellent work culture that had no communication gap between different bodies. The contractor companies that were engaged in construction of the project were directly linked to the senior officers of Kanpur Metro. If something went wrong, be it financial, technical, or material crisis, contractors directly contacted the senior officers of Metro Rail who immediately solved their issues. They got a corporate culture where decisions were mostly made verbally rather than documenting files and papers to delay their project. Soon after the work on Kanpur Metro started, the world moved into one of the deadliest pandemics of all time.
The COVID-19 pandemic stalled every construction work in the country. But Uttar Pradesh Metro Rail Corporation took it as an opportunity and utilized the empty roads during the lockdown. Kanpur's congested areas were clean and smooth during the lockdown. Metros take longer time to be constructed in congested areas. So the authorities utilized the empty roads to erect the piers and the RCC structures during the lockdown. But during lockdown, a labor crisis was predicted. So authorities made labor camps, canteens and shelter facilities to retain them at the location. In fact, when the project was mandatorily halted for almost 5 months, Kanpur Metro arranged transport facilities for its workers. Time for the bonus point. Kanpur's metro stations are half the size of metro stations in Delhi, Mumbai and Kolkata, which are easy to build and requires less space and material. From a long corridor, the authority selected a special stretch and marketed it as a priority section. From IIT to Motichhil, the priority section is around 9 kilometers long and entirely elevated with almost no land acquisition issues. Kanpur Metro's depot too has been made on 16.2 acres of government land that did not involve acquisition of private land. Lastly, Kanpur Metro is being constructed by Uttar Pradesh Metro Rail Corporation that previously built Lucknow Metro. Interestingly, Lucknow Metro previously acquired the title of the world's fastest constructed metro, which was developed in almost 3 years. So, the authority already had the experience of building metro rail in no time. Kanpur Metro is the second masterpiece that has broken the record of its competitor built by the same authority. Experience matters. For more videos on infrastructure development, subscribe to our channel and have a nice day. जी सिमल, आपने देखा, आपकी तो फेवरेट है रेलवे और माशाल्लाह से माय फेवरेट तो ब्लू ट्रेन मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है कानपुर में भी माशाल्लाह से इन्होंने जो है ना स्टार्ट ले लिया और कितने शहरों में इन्होंने 22 तकरीबन 20 से 22 शहरों में स्टार्ट हो गई है। और पाकिस्तान में जो एक ही शहर में वो भी लाहौर में, वो भी दान है वो चाइना के इश्तराक से जो बनाई गई है और वो भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और बड़ा अच्छी वो भी ट्रेन है। अच्छा, इसके बारे में जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ख्याल में शायद ये बना है। और 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो है ना ये तैयार हो गई और कानपुर में। हाँ बिल्कुल। और आपने देखा कि यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने तैयार किया। हाँ, प्री कास्ट में जो है ना पहले उसको जो है ना जैसे कि घर नहीं बनते प्री कास्ट के, इसी तरह जो है इसको प्री कास्ट की पिलर बनाए गए, उसमें भी रखते हुए आपने तो देखा ही है कि किस तरीके से रखे, बड़ी मजबूत जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, फिर ये बहुत कम वक्त में बन गई तो इसलिए रिकॉर्ड भी हो गया कि भाई इन्होंने जो है ना अभी। और फिर ये कम वक्त में बनने की वजह भी मैं बता दूं कि वहाँ पे खड़े हुए योगी जी, ठीक है ना। तो योगी जी जो है ना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में तो ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश में जो है ना योगी जी छाए हुए हैं और योगी जी जो है ना बस काम ही काम कर रहे हैं। अच्छा, बस जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो मोदी साहब को बुला लेते हैं कि ये मोदी जी आ जाएं, आप जो है ना इफ्तिताह कर दें, वो इफ्तिताह कर देते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये रेलवे तो पहले ही बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने माशाल्लाह से इतनी जल्दी इन्होंने 2 साल के अंदर इसको तैयार कर लिया। तो रिकॉर्ड बन गया बिल्कुल। और ये इसका क्रेडिट सारा योगी जी को जाता है। इतने सारे शहरों में इन्होंने ब्लू ट्रेन लॉन्च कर दिया। अब मुश्किल से कुछ ही शहर रह गए होंगे इनके। नहीं, शहर तो बहुत हैं। जी सिमल, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये मेट्रो ट्रेन जो है बन चुकी है कानपुर में। और कानपुर में मुझे एक बात की खुशी भी हो रही है कि कानपुर में बनी, क्योंकि कानपुर में उत्तर प्रदेश में ही काम हो रहा है ज़्यादातर। और वैसे तो अच्छा लगता है बोलने में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो है ना पूरे इंडिया में ही काम हो रहा है, लेकिन जो जहाँ पर योगी जी है ना वहाँ काम ज़्यादा हो रहा है। क्या ख्याल है? क्योंकि देखो ये जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है योगी जी ने ही करवाया ना अपना सारा काम। अच्छा, इसमें भी जो है ना इसकी भी ख़ास बात ये है कि जब ये ट्रेन तो तैयार हो गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, क्योंकि इसकी एक ख़ास वजह ये कि कोविड भी था और इतनी मुश्किलात भी थी, उसके बावजूद भी जो है ना ये बन चुकी। और आपने देखा कि प्री कास्ट के जो है ना वो जो अपना पिलर जो है प्री कास्ट की बने हुए हैं और उस पर जो है ना ये बनाया गया। एक ही जैसे जो है पिलर थे और क्रेन के ज़रिए उसको चढ़ा के जो है ना उसको जो है बनाया। और कोविड में तो बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन उसके हाँ ना उसके बावजूद भी ये जो है ना बन चुकी, मुकम्मल हो गई। अच्छा, एक बात ये भी सोचने में आ रही है कि कोविड था तो इनको आसानी भी हुई होगी, रोड बंद थे
और जल्दी जल्दी काम हो गया, वरना तो ट्रैफिक जब जाम होता है तो फिर बड़ा मसला होता है, क्योंकि एक बहुत सारी, सही कह रहे हैं नीचे रोड है, ऊपर जो है ट्रेन जा रही है, तो उसमें भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इसमें कोविड का भी एक प्लस पॉइंट इनको मिल गया कि भाई कोविड था तो रोड खाली थे तो जल्दी जल्दी काम हो गया, और फैक्ट्रियों से जो है ना वो जो माल आ रहा होगा तो उनका भी चलता रहा सिस्टम, रात दिन एक करके। योगी जी का तो बड़ा नाम है, और जहाँ जाते हैं वहाँ अपना काम कर लेते हैं। ये तमाम तरह चीज़ें जब भी मुकम्मल होती हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने भी प्री प्लान से काम किया होगा योगी जी ने, कि उन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया है। बिल्कुल कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन 2 साल में ही रेडी करवा दी, तो उन्होंने लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि और जहाँ से माल आ रहा होगा फैक्ट्री से, उन फैक्ट्री वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका भी काम चलता रहा होगा। और लॉकडाउन में आसानी से काम हो गया। कितने बड़े बड़े जो उन्होंने ब्रिज रेडी करे, और एक स्ट्रक्चर उठा के रखना, क्रेन से उठाना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो रोडों पे तो जाहिर सी बात है, जब ट्रैफिक जारी होती तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल, रखने में बड़ा मसला है। लॉकडाउन में तो काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा इनको, क्योंकि आसानी से काम हो गया। क्योंकि लाजिम बात है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब क्रेन खड़ी होगी तो रोड ही ब्लॉक हो जाएगा, तो किस तरीके से काम होगा। आवाम परेशान नहीं हो रही होगी। बिल्कुल, वैसे तो बहुत परेशान, कोई चीज़ थोड़ा सा भी काम हो रहा होता तो आवाम परेशान होती है। जब लॉकडाउन है, रश कम है, तो इतनी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, इसका क्रेडिट योगी जी को जाता है। और इसमें यही कहेंगे कि इनकी जो प्लानिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट प्लानिंग है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी इन्होंने बनवाया, और साथ में जो है ना ये भी और मुकम्मल हो गया। इनके सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, यानी कि अब ये मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं कि हर 2 महीने बाद, 15 दिन के बाद कोई ना कोई जो है ना इफ्तिताह करवा रहे होते हैं। मोदी जी को बुला के इतनी मसरूफियत के बावजूद जो है ना वो पहुँचते हैं, और जो है ना तमाम तर चीज़ों को जो है ना वो देख के अपना काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जी की कि जो भी इनके प्लान में चीज़ें हैं, वो उसका बजट प्रोवाइड करना, ये एक सबसे बड़ा मसला होता है कि बजट टाइम पर दे दिया जाए। और जो काम करवाने वाले हैं वो भी योगी जी हैं, तो लाजिम है तो वो अपने टाइम पे ये काम करवा रहे हैं। इंजीनियर को टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, लेबर को टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, काम तेज़ी से हो गया, और उतने ही पैसों में हो गए जितने के पैसों में उन्होंने तय किया था। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो इस तरह होता है कि भाई आज स्टार्ट हुआ है तो 10 साल के बाद जो है मुकम्मल हो रहा है। तो लेबर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेबर से मुझे एक बात याद आई है, कितने लेबर्स काम कर रहे होंगे, उनकी भी रोटी लगी होगी लॉकडाउन में, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बिल्कुल लाजिमत है, जब बंदे को पैसे मिलेंगे तो खुश होकर काम करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा एफर्ट्स लड़ा के काम करेगा। अब यहाँ पर तो ये है ना कि प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो पैसे मिलना जो है ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लाजिमत है, आज अगर डॉलर जो है अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये है, तो कल को जो 120 हो गया, तो उसके पैसे बढ़ गए। तो लाजिमत है वो ठेकेदार चीखेगा कि भाई मेरे तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा, लिहाजा मेरे पैसे बढ़ाओ। पैसे बढ़ाने में 4 महीने लग गए, तो पता लगा जो साल का काम था वो 2 साल में हो गया। और कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि 10-10 साल लग जाते हैं, प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रहता है। तो बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त ये मेट्रो ट्रेन जो है कानपुर में मुकम्मल हो गई है। और आपको पता है कि 20 से 22 शहरों में जो है मेट्रो ट्रेन चल रही है। वहाँ पर हमारे यहाँ एक ही शहर में, और वो लाहौर है, और वो जो है चाइना के जो है इश्तराक से बनाई गई है। और ये भी हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने बनाई थी। और वो भी अच्छा देखें, चाइना के बदौलत हुआ है ये जो है। मैंने अभी तारीफ़ की योगी जी की, और तारीफ़ काम की जाती है, ठीक है, तो तारीफ वाले उन्होंने काम किया है, तो जब तारीफ़ इसलिए की कि उन्होंने काम किए। अच्छा, इसी तरह जो है ना शहबाज शरीफ ने भी जो है ना वहाँ काम करवाया लाहौर में, और उनकी भी तारीफ़ इसलिए की जाती है कि भाई वो भी काम वाले आदमी थे, वो भी बैठते नहीं थे। नो डाउट उन्होंने लाहौर को बहुत अच्छा सिटी बना दिया, बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। बिल्कुल, क्लीनिंग कर दी है, और हरियाली बहुत है वहाँ पे, मेट्रो ट्रेन चल पड़ी है, और भी बहुत सारी सहूलतें हैं लाहौर में। जी हाँ, तो इवन कराची से ज़्यादा सहूलतें मुझे लगता है आज लाहौर में है। बिल्कुल। तो दोस्तों बात ये है कि काम की ही तारीफ़ की जाती है उस बंदे की जो काम का आदमी होता है। और योगी जी की हम तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं कि लाजमी वो काम करवाते हैं। और रेलवे का निज़ाम तो वैसे ही बहुत इंडिया का, एशिया का सबसे टॉप 1 पर जो है उनका निज़ाम है। तो इसी के साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। और सिमल शेख का एक मैसेज है। जी हाँ, बिल्कुल, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये थोड़ा सा प्यार ज़रूर शेयर किया करें हमारे साथ, और रिएक्शन बताइएगा कि नेक्स्ट रिएक्शन किस पे हो। और मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।